Good morning, everyone. People, am I audible to all of you? Yeah, all of you can all of you hear me? People, please let me know. Everyone can chat with everyone. Okay, ठीक, just a moment. People. Participants can chat with everyone. Okay. Okay, so if there is any issue, you can write in the chat, or else we are good to go. So let me just recap what we had done the last time. So last time हमने क्या किया था कि we had actually arrange two sentences. So I will just, I a short while back, I shared the YouTube link of the session that I had taken last time. And I told you in that you will see that there are two sentences given. I started with two sentences and now I'm going to three sentences. So we took two sentence parajumble the last time. Okay. We took two sentence parajumble and yes, we took two sentence parajumble. And the idea was that you will have two sentences AB. This can be put in two ways, either AB or BA. So you have to choose which one is possible in these two sentences, which combination, AB or BA. We have taken like this a few questions, and we learned a lot about how sentences come together. So arranging two sentences is much easier than arranging three or four sentences. So we thought that we would go in an order. We would start with two sentences, then we would take three sentences, then we would go to four sentences. So this way, if you move from two to three and then three to four, things are going to be easy, right? This is what we did the last time. So we did two sentence parajumble. Today we are going to do three sentence parajumble. Now the point is, what connects two sentences? See, you don't connect four sentences. You usually begin with a certain point. So when you start with the parajumble, what do? You fit one sentence. So this is the first place. Then from the first, which idea will come next? So you put second. Then from second, which idea comes next? Third. And then from third, you will go to the fourth. So basically, your arrangement is always happening between two sentences. So once you know that this is the opening sentence, then you go and take the one that should come after it. And then once you have put this, then you go to the third one. So this is what you do. So basically, you always play with two sets and keep on arranging them till you reach the final end of the journey, right? Now, the point is, what I'm trying to make is, what connects two sentences? Those sentences connect क्यों होते हैं और कैसे connect होते हैं? So when you have what connects two sentences, the first point is that they should be related. है कि नहीं? If there is no relation between two sentences, तब तो connection तो बनेगा ही नहीं ना? है कि नहीं? They should be related, otherwise there is no connection between the two. So it is very, very important that whenever you look at any two sentence, you check whether they are related or not. For example, if I give you one sentence number A कहता है कि today, let's say it is Friday or Thursday, whatever it is. Today it is Friday. And then B say that, let's say, my exams, or let's say, let's take something else. Today it is Friday. Neil Armstrong was the first man to land on the moon. Okay. So if you put these two sentences, you might wonder, are they connected? Today it is Friday. Neil Armstrong was the first man to land on the moon. मुझे लगता है ठीक है यार. Today it is Friday. I don't see how A and B are connected. This talks about the day today, and this talks about a factual thing that is known to all of us, that Neil Armstrong was the first man to land on the moon. But if you tell me, sir, let's put AB as a unit, I don't see that they are going together as a paragraph. Why? Because there is no relation between the two. There is no relation between today it is Friday and Neil Armstrong was the first man to land on the moon. You might have something in mind, but you have not put it in the right order. So today it is Friday. If you want to put it like this, you should say, on this day, है ना, 42 years ago,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग landed on the moon or became the first man to land on the moon, something like this. Today it is Friday. On this day, 42 years ago or 52 years ago, Neil Armstrong became the first man to land on the moon. In this way, I can say, okay, A and B में कुछ तो relationship है. So whenever there are two sentences, they should be related. And once there is a relation between them, you can connect them in some order. Otherwise, it is very difficult. So the point is that how do you know that sentences are related or they connect with one another? So how do we know that sentences are related, or rather sentences need to be connected? Need to be connected, or I would use the word needs a connection. Okay? How do we know that sentences need to be connected or it needs a connection? Okay? The first thing is the pronouns. The pronouns in a sentence. So I will give all the examples to you as I take the question today. We have 10 questions and we will take every question and we'll show you that how do we know that sentences need to be connected. For example, if you look at this sentence, on this day. So this day refers to a certain day. And when I read this sentence alone, I don't understand what kind of day are you referring to. So when you say on this day, 52 years ago, Neil Armstrong landed on the moon, I don't know what do you mean by this day. But when I look at the earlier sentence, then I get to know, okay, today is Friday. On this day, 52 years ago, Neil Armstrong landed on the moon. Okay, I got it. So this day basically means Friday. That is what you make sense of. So pronouns in a sentence help you connect sentences. Yeah, this is a very, very important thing. Pronouns in a sentence help you connect sentences. So whenever there is a pronoun in a sentence, it means that it should refer to some noun. If it is a pronoun that needs reference, there are lots of pronouns that don't need reference. But if it's a pronoun that needs reference, that means it needs to be connected. So I will take a few examples and then I will show you how the pronouns need to be connected. Okay, so I will go to the question here and we will start. Don't look at the session number. All of you can see the screen now. Everyone can see the questions on the screen. और आपको मुझे ये बताना है, ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि which are the elements that make you feel that the sentence needs to be connected. ठीक है, everyone is ready now? Yes, people, everyone is ready. Can you all hear me? Please take the first question and tell me the order in which the sentences might come. Please take the first question and tell me that A, B, C में क्या order होगा and which is that thing which helps you connect the sentences. Where is the pronoun and do you see anything that could be a clue which you can use to connect the sentences? Sir, B, C. तो किसी ने पेयर बना दिया BCA. ओके, ठीक है, BCA बनाया पेयर. वैसे मुझे ये बता दो कि कोई क्लू दिख रहा है क्या आपको? मैंने प्रोनाउन कहा था, प्रोनाउन यूज करो, प्रोनाउन यूज करो. कोई प्रोनाउन दिख रहा है आपको? मुझे ये प्रोनाउन दिख रहा है. मुझे लग रहा है कि इसको यूज करके आई कैन क्रिएट अ कनेक्शन. आई कैन क्रिएट अ कनेक्शन. करेक्ट. सो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए. ये दिस जो है ना, ये दिस बी ग्रांटेड क्या है? ये बाय देयर नेचर क्या है? बाय देयर नेचर जो है ये एम्पायर्स की बात कर रहा है. और एम्पायर्स बी में पहले से ही दे रखा है. हाँ, तो कई बार क्या होता है ना, आपको ये ध्यान देना है कि कभी कभार प्रोनाउन जो है ना, वो उसी सेंटेंस के नाउन को रेफर कर रहा है. जैसे मैं लिखता हूं बाय हिज नेचर कॉमा माय सन इज क्वाइट रेस्टलेस, और रादर आई वुड से माय सन इज ऑलवेज रेस्टलेस. ठीक है, तो अभी ये हिज पता है कौन है? ये माय सन ही और कोई नहीं है. अगर ये रेफर नहीं करता तो मैं बोलता कि यार ये किसकी बात कर रहा है, ढूंढते हैं उसको. जैसे मैं लिखता बाय हिज नेचर ही इज ऑलवेज रेस्टलेस. अब ये ही कौन है? नाउ आई नीड टू रेफर इट टू समवन.
तो मैं देखूंगा यार कहीं पहले कोई तो आया होगा जिसके बारे में ये हिज और ही बात कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पर भी होता है। बाय देयर नेचर एम्पायर्स इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन इन देम। सो देयर नेचर किसको रेफर कर रहा है? एम्पायर्स को। एम्पायर्स प्लूरल है ना, तो एम्पायर्स प्लूरल है तो ये दियर हो जाएगा। अगर ये सिंगुलर होता है तो ये भी सिंगुलर ही होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउन प्रोनाउन रूल, दैट इफ द नाउन इज सिंगुलर, देखो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, ग्रामर भी मैं पैरेलली कुछ कुछ चीजें आपको देता रहूंगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, और अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। तो आपने कहा ठीक है ये तो समझ में आ गया, ये किसकी बात कर रहा है? ये तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको। कैन यू रेफर इट टू समथिंग? If this be granted, Africa must have had its fair share of colonizers and colonists in history. So what is if this be granted? ये किसको रेफर कर रहा है? कॉलोनाइजेशन। ये रेफर कर रहा है किसी प्रिंसिपल को। आप बोलोगे सर ये प्रिंसिपल क्या होता है? देखो दिस और दैट जो होते हैं ना, वो कभी कभार पूरे सेंटेंस को रेफर करते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लेट्स से इंडिया हैज, देखो हाँ समझो इसको, डिफीटेड पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, इंडिया हैज डिफीटेड पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप फाइनल, फुल स्टॉप। इफ दिस इज ट्रू, it seems, लिखो, it seems India has defeated Pakistan. If this is true, I will not go to school today. ठीक है, आपने लिखा भाई। अब मुझे बताओ कि ये दिस क्या है? ये दिस किसको रेफर कर रहा है? Sir, whole किसकी? sentence that India इंडिया has ने हाँ, defeated जीती ये पाकिस्तान। Pakistan. दिस पूरी इसकी बात कर रहा है, ये पूरे इसकी बात कर रहा है। एक पूरा जो फैक्ट है वो दिस रेफर कर रहा है। तो दिस ऐसा नहीं कि किसी एक चीज को रेफर करेगा हमेशा, कि दिस का मतलब क्या हो गया, ये होटल, ये पेन, ये शर्ट, ये दिस होता है। हाँ ये सब भी दिस होते हैं। जैसे आप पार्टी में जा रहे हो, तो आपके पापा ने आपकी शर्ट पहन ली, आपने आपकी पापा की शर्ट पहन ली, तो पापा ने कहा रे दिस इज माइन। तो दिस यहाँ पे क्या कर रहा है? इट इज रेफरिंग टू द शर्ट दैट यू आर वेयरिंग और योर फादर इज वेयरिंग। So this can refer to singular object, those will refer to multiple objects, but they can also refer to one entire idea. This is one entire idea. क्या लिखा हुआ है देखो, it seems India has defeated Pakistan in the World Cup final. ये आपको कहीं ना कहीं से मालूम पड़ा। आप शायद शिप पे हो, वहां पे मोबाइल फोन नहीं चल रहे हैं, या आप एरोप्लेन में हो, तो आपको वहां से किसी ने मतलब उड़ती खबर आई कि इट सीम्स इंडिया हैज डिफीटेड पाकिस्तान। इफ दिस इज ट्रू, दैट दिस किसको रेफर कर रहे हैं? पूरे फैक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं अपन। अब इफ दिस भी ग्रांटेड जो है ना, ये किसी चीज को रेफर कर रहा है, ये शायद हो सकता है किसी आइडिया को रेफर कर रहा है। और ये आइडिया पता है क्या है? ये है ना, इसको रेफर कर रहा है कि नहीं? बाय देयर नेचर एम्पायर्स इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन इन देम। अगर ये सही है तो अफ्रीका मस्ट हैव हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ कॉलोनाइजर्स। हाँ कि ना? कहना इसे सी से ए पे जाता है। यस सर। सबको समझ Yes, में आया कि नहीं? yes, sir. तो आपने एक प्रिंसिपल क्रिएट किया है ना, आपने एक प्रिंसिपल क्रिएट किया। कैसा प्रिंसिपल था? आपने कहा है कि जो एम्पायर्स का नेचर होता है, दे इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन इन देम। और अगर ये बात सही है तो इसका मतलब अफ्रीका आल्सो मस्ट हैव हैड इट्स शेयर। तो आप सी से ए पे जाएंगे, आप ए से सी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप ए से सी पे जाओगे तो ये दिस किसको रेफर कर रहा है? इसका मतलब सी ए पेयर है। अब बी या फिर यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, है कि नहीं? बी क्या बोलता है? अफ्रीकन हिस्ट्री इज रिप्लीट विद अकाउंट्स ऑफ एम्पायर्स एंड किंगडम्स। So can I say you would start with African history? अफ्रीका में एम्पायर्स होने चाहिए ना, तब जाकर के अफ्रीका मस्ट हैव had its fair share of colonizers. तो पहले अफ्रीकन हिस्ट्री इज फुल ऑफ एम्पायर्स। By their nature, empires have colonization, and therefore Africa must have its fair share of. Can I say B will come at the start? It makes more sense to have it here than to have it at the end. Yes, people. Sir, what is the meaning of repeat in this sentence? Replete means full of. याद रखो ये भी वोकेबलरी वाला है। रिप्लीट का मतलब है फुल ऑफ। क्लियर एवरीवन? Yes, African sir. history is full of accounts of empires and kingdoms. By their nature, empires
incorporate elements of colonization. If this is true, Africa must have it. Everyone is clear about it? सबको समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ जी सर। है ना, पकड़ में आ गया? देखो ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ऐसी चीजें आप पकड़ में आ रही है ना आपको, तो आपका पैराजंबल बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैराजंबल सबका सब बन जाएगा, लेकिन पैराजंबल में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम में, वो आपके बनने लगेंगे। और अगर ये बनेगा तो जो आता है ना सेंटेंस ब्लैंक वाला, एक क्वेश्चन मैं लास्ट ईयर कराया था बच्चों को, वो सेंटेंस ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। वो बोलता है कि सेंटेंस गायब कर दो पैराग्राफ में से, वो सेंटेंस कहाँ फिट होगा, तो उसमें भी यही प्रिंसिपल अप्लाई करना है आपको। तो आपके देखा जाए 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर नाउ? तो आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने कहा भाई अफ्रीकन हिस्ट्री इज रिप्लीट विद अकाउंट्स ऑफ एम्पायर्स एंड किंगडम्स। By their nature, empires incorporate elements of colonization in them. And if this is true, Africa must have had a share of colonizers. चलो, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लॉट्स ऑफ इजी क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दैट 80% ऑफ पैराजंबल्स, ठीक है, कैन बी सॉल्व्ड बाय correctly by connecting pronouns with noun. By connecting pronouns with nouns. अगर ये कनेक्शन आपका बैठ जाता है ना, तो आपके 80% काम बन जाएंगे। 80% क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। मतलब ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। इसमें भी हमने क्या किया, हमने इसको यूज किया। यहां पर बताओ, यहां पर क्या हो रहा है, इसका सीक्वेंस क्या होगा? CBA। CBA. CBA, ओके। तो आपने ये समझ लिया कि चूंकि यहाँ पे it दिया हुआ है, you must have seen that because the word it is given here, it must refer to something, correct? Everyone agrees? ये किसी की तो बात कर रहा है। Yes sir. जी। तो पहला काम क्या करना चाहिए था आपको कि ये इट को फिट करो पहले। जैसे ये इट फिट हो जाएगा ना, आपका बहुत सारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो पक्का ओपनिंग नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग होगा तो फिर नाउन, नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है। देखो नाउन प्रोनाउन का सीक्वेंस ऐसा होता है। ये सेंटेंस के अंदर नहीं है, सेंटेंस में कभी कभी प्रोनाउन पहले आता है, लेकिन ये दो अलग अलग सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि एक सेंटेंस में प्रोनाउन आया है तो उसके पहले ही वो नाउन आएगा, उसके बाद में नहीं आता। लेकिन कभी कभार अगर सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, जैसे यहां पर दिख रहा है ना आपको, इस सेंटेंस में पहले मैंने प्रोनाउन डाल दिया और फिर मैं नाउन डाला, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है, बिकॉज आई नो दैट दिस देयर रेफर्स टू एम्पायर, से कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ठीक है, चलो अब मैं इस पे आता हूँ। It enjoyed at least 1000 years of recorded history from 1000 CE till now. तो ये किसकी बात कर रहा है? ओयो की बात कर रहा है। तो ये जो है, इसके पहले क्या आएगा? ये आएगा या ये आएगा? C. ये आएगा ना, ये आएगा। ओयो इज बेसिकली अ थिंग। यहां तो आप ओयो गवर्नेंस की बात कर रहे हो ना, ये तो ओयो गवर्नेंस की बात हो रहा है। ये Yes, ओयो sir. ऐसा, तो देखो फर्क है, ओयो गवर्नेंस में और ओयो में फर्क है। ओयो इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग स्टेट्स इन वेस्ट अफ्रीका। यानी ये ओयो जो है, इट्स अ नाउन। इफ यू सी लुक एट ओयो गवर्नेंस, ओयो गवर्नेंस वाज मोनार्किकल। इसका मतलब ये किसको रेफर कर रहा है? ये ओयो की बात नहीं कर रहा है, ये ओयो ओयो गवर्नेंस की गवर्नेंस को बात है। हाँ, तो ये गवर्नेंस जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आया कि जैसे इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडिया is one of the oldest, let's say, civilizations of the world. Indian government is responsible for this. So in the first case, you have said that India. The second case, you have said Indian government. Government noun बन जाता है, Indian तो adjective बन गया उसका। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम सी से स्टार्ट करेंगे। आपने कहा ओयो इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग स्टेट्स इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद में आप ए करोगे या बी करोगे? A। सर ए। ए लगता है ना सही? क्यों? देखो आप, आई विल टेल यू व्हाई। एक और प्रिंसिपल मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं शायद लिखा नहीं था वहां पर आपकी सहूलियत के लिए। देखो पहला तो प्रोनाउंस था, आपने फट से चिपका दिया इसको। दूसरा क्या था उनमें? कीप सिमिलर आइडियाज टुगेदर। कीप सिमिलर आइडियाज टुगेदर। अगर वो सिमिलर है तो वो अक्सर साथ में जाएंगे। तो सिमिलरिटी कहाँ आती है? जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इसी सेंटेंस के अंदर जो हम अभी पहले ले रहे थे। इसमें एग्जाम्पल ये है कि ये क्या बात कर रहा है?
This talks about longest lasting. So can I say it talks about time frame? ये भी time frame की बात कर रहा है. 1,000 years and longest lasting. Can I say that these two are connected ideas? So आपने Oyo is one of the longest lasting states. It enjoyed at least 1,000 years of recorded history. तो आपने C से start किया, Oyo को introduce किया, और आपने कहा ये longest lasting है. फिर आपने लिखा ये कितना longest lasting? भैया 1,000 साल. और फिर आपने टाइम पीरियड का डिस्कशन खत्म कर दिया. क्या है ये? एज अ यूनिट टाइम पीरियड की बात कर रहा है. और जो बी आ रहा है ना, वो पता है किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की. तो भैया सीधी सी बात है ना कि जो सिमिलर है पहले हम उसकी बात करेंगे, फिर हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, उसको एंड में डाल दो तो सी ए के साथ बी आ जाएगा. You talk about the time frame, then you talk about the form of government, and then you might add something more if you want. Can I say the answer is C, A, and then B? Easy लग रहा होगा ना सबको? Sir, why can't it be BCA? देखो BCA इसलिए नहीं होगा ना कि पहले तो आप मुझे बताओ कि ओयो है कौन? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ओयो होटल की बात कर रहे हो आप, है कि नहीं? मतलब पता है क्या होगा, मान लो आपने शुरू कर दिया ओयो गवर्नेंस, तो आप लोग कह रहे हैं ये ओयो क्या अपना वो ऑनलाइन वाला ओयो है क्या? तो मुझे आप बताएं कि ओयो ये ओयो है क्या? ये आप किस ओयो की बात कर रहे हैं? So you first introduce the place and talk about its क्या बोलते हैं basic introduction, and then you talk about the governance part of it. है कि नहीं? Yes, yes, Got yes, it, sir. sir. Yes, sir. हाँ देखो क्या होता है ना कि अगर वो चीज इंट्रोड्यूस, देखो आप मुझे बताओ, सपोज मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, मैं इसको भी निकाल देता हूँ, और हम बातें कर रहे हैं बैठ के, आपने खाली इतनी बात सुनी, तो आपको पता है क्या लगेगा कि जो बंदा ये बात बोल रहा है ना, ये ओयो में काम करता है. वो ओयो कंपनी की जो गवर्नेंस है उसकी बात कर रहा है. यानी कि ओयो गवर्नेंस जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो होटल चेन्स है, वो मोनार्किकल है, वहां पे चीफ लोग हैं, फंक्शनरीज हैं. मतलब यू वुड बेसिकली यूज सम आउटसाइड, देखो, नॉलेज, करेक्ट, you would use some outside knowledge to make sense of what is being discussed. Yes or no? To make sense of what? This phrase oyo governance. Yes or no? तो कोई भी चीज जिसके लिए इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दिया गया है, फिर आदमी क्या करता है ना, वो सोचता है कि हाँ शायद इसकी बात हो रही होगी, शायद उसकी बात हो रही होगी. That's why as a rule you always put all the introductory ideas at the start, ताकि बंदे को पता रहे कि किस चीज की बात हो रही है, वो चीज कहां पर है, वो चीज किस चीज में डील करती है, एंड देन यू बिल्ड योर आइडियाज. जैसे हिमालयाज की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आई हैव बीन टू हैदराबाद मेनी टाइम्स. I have been to Hyderabad many times. I like the people out there, but their language is a little bit difficult to understand. तो ये हैदराबाद तो इंडिया वाली हैदराबाद की बात कर रहे होंगे ना शायद आप. एक हैदराबाद तो पाकिस्तान में भी है. तो अगर आप वहां पे गए थे तो आप पता चले क्या लिखो, आप लिखो कि भाई there is a city by the name Hyderabad in Pakistan. I have been there many times. The people are good, but their language is difficult to understand. Are you getting my point? ठीक है. इंट्रोडक्टरी चीजें सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद में आप बाकी चीजों को डालो. चलो भाई तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं अब. And now you have got the sense of how to connect ideas. ठीक है. Again here we use the word it, and we use one more concept. The concept is keep similar ideas together. जो आइडियाज सिमिलर होते हैं उनको हमेशा साथ में रखें आप. ठीक है. Now I want you to take the third. This could be a bit difficult question because ये मैंने लिया था कैट वालों में, बहुत डिफिकल्ट लगा था उनको. ठीक है, चलो ये तीनों को ले लो आप. थर्ड क्वेश्चन. CAB. ये CAB. देखो यहाँ पर ना वापस हम प्रोनाउन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है. और ये देखो, ये अब ये दे इसको तो रेफर नहीं कर रहा होगा ना, लग रहा है इसको कर रहा होगा.
नहीं ना, आप बोलोगे ये इन्वोक्ड होली वॉर इकोनॉमी को नहीं कर रहा होगा, दे इज रेफरिंग टू फाइटर्स आई थिंक, राइट? सोल्जर्स को रेफर कर रहा होगा, या सोल्जर्स तो नहीं पर फाइटर्स को रेफर कर रहा होगा, या कोई ह्यूमन एंटिटी को रेफर कर रहा होगा ना। तो ये किसको रेफर कर रहा है? European Christians and Maghrebi Muslims. ठीक है, so you would say that during the 16th and 17th centuries both European Christians and Maghrebi Muslims were capturing and enslaving। और सीधी सी बात है यार, होली वॉर कब होता है? होली वॉर तब होगा जब दो रिलीजन के बीच हाँ, में होगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये यूरोपियन क्रिश्चियंस को रेफर कर रहा हो, मैग्रेबी मुस्लिम को, दोनों लड़ रहे होंगे एक दूसरे के साथ। तो आपको ये समझ में आ गया है कि ठीक है यार, मुझे तो स्टार्ट सी से करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके दो पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, या फिर ये सीए भी होगा या फिर ये सीबीए होगा। कई बार पता है क्या होता है, जब आप एक सेंटेंस को फिक्स कर देते हो ना, तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। इसलिए आप पैराजम्बल्स को है ना खाली पढ़ते रहोगे, रीड करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो आसमान से नहीं आएगा आंसर। आपको पहले एक सेंटेंस को पकड़ना होगा। जैसे मैं पता है क्या बोलता हूँ बच्चों को, देखो अंडरस्टैंड दिस, सबसे पहला काम है ओपनिंग को निकाल दो। ओपनिंग सेंटेंस आपका क्लियर हो गया और आपका एक पेयर अगर बन गया तो आपका आंसर ऑलमोस्ट बन गया है। सो कोई भी चीज का एक प्रोसेस होता है। जैसे बहुत लोग पता है क्या करते हैं, वो पैराजम्बल्स को देखते हैं, एकदम रीड कर रहे हैं, अरे रीड किए जा रहे हैं, बोला यार रीड करने से क्या होने वाला है? इमीडिएटली टेक पेन एंड पेपर एंड टेल मी विच इज द ओपनिंग सेंटेंस। जैसे आपने यहाँ क्या कहा मुझे कि सर सी तो ओपनिंग सेंटेंस होगा, बिकॉज आपने एक टाइम पीरियड लगा दिया। जब भी हम टाइम पीरियड लगाते हैं ना कोई भी चीज में, तो अक्सर स्टोरी की शुरुआत होती है। टाइम, प्लेस, लोकेशन, ज्योग्राफी, ये सब चीजें जो होती है ना, ये स्टोरी की शुरुआत होती है जनरली, मोर ऑफ्टन। आई मीन आई डोंट से अगेन देयर इज नो रूल एज सच, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टोरी। During the 16th and 17th century, both European Christians and Maghrebi Muslims were capturing, enslaving and selling their enemies. तो capturing है, selling है, enslaving है, enemies भी है। तो can I say this could invoke holy war? Though they sometimes invoke. Invoke का मतलब क्या है? What is the meaning of invoke? Sir, to start. दो वर्ड हैं। एक वर्ड है इवोक, ठीक है, और एक वर्ड है इन्वोक। ठीक है, अब इन्वोक का जो मीनिंग होता है, तो बेसिकली क्या है कि उकसाना। आई विल टेल यू नाउ टू मेंशन टू बेसिकली टू सर चिंगारी, किसी चीज की स्टार्ट। एक्चुअली वो प्रोवोक है, मतलब वो आपने जो बोला ना, उकसाना। ये प्रोवोक उकसाना है, ये इन्वोक है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली, मैं क्या बताऊं आपको। देखो मैं आपको ऐसे आता हूँ, प्रोवोक उकसाना होता है। इन्वोक बेसिकली मीन्स टू साइट समथिंग एज रीजन। ठीक है, ध्यान देना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टू साइट समथिंग एज रीजन। तो आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे कि दो दे समटाइम्स इन्वोक्ड होली वॉर, दे समटाइम्स इन्वोक मींस दे साइटेड, जो ये जो कर रहे हैं ना, कैप्चरिंग, एनस्लेविंग, सेलिंग, इसके पीछे जो रीजन है वो होली वॉर का रीजन बता के कर रहे थे। समझ में आया? कोई चीज के रीजन को बताना, that is how the word invoke is used. So for example, invoke means to call to reason, ऐसा होता है ना। इवोक जो होता है बेसिकली वो होता है जगाना। समझ में आया कि नहीं? आई विल गिव यू वेरी वेरी गुड एग्जांपल। थोड़ा सा मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। आप अपने पुरानी फोटोज देखते हो स्कूल की, फर्स्ट में रहे थे या सेकंड में रहे होंगे, तो जब देखते होगे तो आपको कुछ मेमोरीज आती होंगी ना स्कूल की, फोटो से ट्रिगर हो रही हो मेमोरीज, Yes, sir. है ना? यस सर। फोटो थी, फैमिली फोटो देखी आपने 15 साल पुरानी, आपको देख के अरे यार मैं तो ऐसा था, तो आपको कुछ याद है। तो कैन आई से द फोटो इवोक सर्टेन मेमोरीज? यस। द फोटो हैज इवोक्ड सर्टेन मेमोरीज। प्रोवोक नहीं यूज करना और इनवोक भी यूज नहीं करना, ठीक है? क्लियर हो गया सबको इवोक कैसे यूज करते हैं? सर एक इनवोक का और एग्जांपल दे दीजिए। नहीं नहीं, अभी तो मैं खाली इवोक यूज कर रहा हूँ खाली, ठीक है?
इवोक का क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल है, टू इवोक मीन्स टू ब्रिंग टू माइंड, टू ब्रिंग बैक टू मेमोरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आप जैसे मान लो दिल्ली में रहते हो या कहीं भी रहते हो, तो यू माइट गो टू सर्टेन रूइंस ऑफ ओल्ड राजास एंड पैलेसेस. You know, when you go to stations, sometimes it evokes the memories of British Raj. Yes, sir. है ना? Evoke मतलब कि memory में लाना. Recall. हाँ, to recall in memory, to bring back in memory, to call forth in memory. ये उकसाना होता है. ये तो बड़ा आसान है. प्रोवोक मतलब हमेशा उकसाना होता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, यहाँ पे प्रोवोक होता है. इवोक मतलब अक्सर मेमोरीज होती है जो आपके दिमाग में कोई चीज, जैसे होता नहीं, कुछ कुछ गाने सुनते हो आप, तो आपको अचानक से आपका बचपन याद आता है, बिकॉज बचपन में आपने शायद वो गाने सुने थे, वो कहीं उसकी इम्प्रिंट रह गई है, और आज 15 साल बाद जब आपने कोई वही गाना सुना तो आपको लगता है यार कहीं ना बचपन में जा रहा हूं मैं. आई थिंक many of you would say that there are certain songs that evoke memories of childhood. या कई बार Yes, लोग sir. टॉम एंड जेरी कार्टून देखते हैं, तो वो देखते देखते बोलते हैं अरे मुझे आज बचपन याद आ गया. Sir. हाँ, सर तो प्रोवोक मतलब नेगेटिव टर्म्स के लिए यूज होता है, मींस वो अगर आप किसी हमेशा को नेगेटिव होता मोटिवेट है, कर रहे हो. हमेशा हमेशा. एंड यू प्रोवोक एक्शंस फ्रॉम पीपल, नेगेटिव एक्शंस. ये इवोक हमेशा मेमोरीज को लेके होता है. सर मतलब अगर कोई किसी को पढ़ाई के लिए उकसा रहा है, मतलब वो कर रहा है एक तरीके से, तो उसको उसके लिए क्या देखो, यूज करेंगे? पढ़ाई के लिए तो उकसाना नहीं होगा. पढ़ाई के लिए उसको वो बेसिकली वो कर रहा है, मतलब इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, या परसुएट कर रहा है. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. तो सर इवोक ज्यादातर पॉजिटिव टर्म्स में यूज होता है, प्रोवोक नेगेटिव में. हाँ, प्रोवोक है कि आप किसी को भड़का रहे हो, उकसा रहे हो गलत काम करने के लिए. इवोक जो होता है वो आपके अंदर की जो मेमोरीज है वो जग रही है किसी और तरीके से, किसी माध्यम से जग रही है, तो वो इवोक हो जाता है. समझ में आया नहीं? ओके ओके, हाँ जी सर, हाँ जी. ओके. ये बाहर को ट्रिगर करता है, ये अंदर को ट्रिगर करता है ना? आपने भड़काऊ भाषण लिख दिया कहीं पर, तो इट प्रोवोक्ड पीपल टू गो एंड फाइट. क्लियर हो गया सबको? गॉट इट सर. इन्वोक क्या होगा? इन्वोक मीन्स टू यूज समथिंग एज रीजन. सिंपल. टू इन्वोक मीन्स टू यूज समथिंग एज रीजन. To support an argument. हाँ, सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट, समथिंग लाइक दैट. अब जो ये नहीं है वो ये नहीं है, तो वो यही होगा, ऐसा होना चाहिए, टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग इजी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. यस सर. सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करता है सर्टेन sections of the law, invoking the article so and so, the Supreme Court has passed the order. तो invoking का मतलब क्या है? To use it for as a legal purpose or as a reason. तो सुप्रीम कोर्ट कई बार डिसीजन देता है ना, तो वो डिसीजन किस पे बेस्ड होते हैं? कोई ना कोई तो प्रिंसिपल होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें the Supreme Court wants to give something as a reason and therefore it invokes that particular thing. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? During 16th and 17th centuries, both European Christians and Muslims were capturing, enslaving, and selling their enemies. Though they often sometimes invoked holy war, gave reason of holy war. है ना? Economy and politics regularly took precedence. What is take precedence? Take precedence means priority. है ना? And Muslim captives were particularly prized for their purported endurance. Both European and Maghrebi corsairs. और देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, you basically started your discussion with enemies and fighting, and gradually from A you move to B. B में क्या हो रहा है? Some sort of you have moved away from fighting and you are focusing on trade. Yes or no? तो आपने क्या कहा? Both European and Maghrebi corsairs had licenses from their governments. ये corsairs पता है कौन होते हैं? ये बेसिकली प्राइवेट पायरेट्स होते हैं जो चोरी चकारी करते हैं. यू कैन कॉल देम एज बिजनेसमैन. ये बिजनेसमैन थे अपने जमाने के, है ना? सो बोथ यूरोपियन एंड मैग्रेबी corsairs had licenses from their governments and they paid taxes. अब बहुत लोग पता है क्या करते हैं? वो सी से शुरू करते हैं, वो बी पे जाते हैं, फिर ए पे जाते हैं. इसमें क्या रॉन्ग है बताओ मेरे को? हाउ कैन यू प्रूव
that it is not CBA, it is CAB. ये तो आपने अग्री किया, मुझे बताओ कि इसमें क्या फ्लॉ है? सभी में वो कैप्चर हो गए सर एम्पायर। देखो और अभी मैं आपको बी में बताता सर हूँ, मजे की कैप्चर बात करने जो की मैंने बात आपको कर बताया रहे था हैं। पहले। मैंने क्या कहा था, ये किसको रेफर कर रहा है? ये इसको रेफर कर रहा है ना, यूरोपियन क्रिश्चियंस एंड मगरेबी मुस्लिम्स, करेक्ट? अगर आप CAB रखते हैं तो द प्रोनाउन इन ए दे refers to basically these two. अगर आप CBA कर देंगे, the pronoun in they will refer to something in B, correct? Yes or no? The pronoun refers to the nearest noun. याद रखना इस बात, ये भी लिख देता हूं मैं. The pronoun refers to the nearest noun. इसका मतलब पता है क्या है कि जो प्रोनाउन है ना वो बहुत दूर नहीं जाएगा, वो सबसे नजदीक नाउन को पकड़ लेगा. So I will give an example. Now see, look at this example. Sentence number 1 क्या है? I celebrated my birthday on 26th Jan. ठीक है? Full stop. Many people were invited. ठीक है? Full stop. Third sentence. John came with his mother. है ना? Fourth है Peter came with his wife. है ना? Full stop. He was, fifth लिखा हुआ, he was wearing a red shirt. He was wearing a red shirt. तो मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं. मैंने कहा I celebrated my birthday on 26 Jan. Many people were invited. John came with his mother. Peter came with his wife. He was wearing a red shirt. यही किसको रेफर कर रहा है? तो आइदर जॉन और पीटर। देखो आइदर तो फिर तो कंफ्यूजन हो गया ना भाई, रेड तो कोई एक ही बंदा पहना होगा, तो ये पीटर को रेफर करेगा क्योंकि सबसे नजदीक कौन है? पीटर है. अगर मैं इसको यहां डालता बीच में तो ये किसको रेफर करता? ये जॉन को रेफर करता. जॉन केम विद हिज मदर, ही वाज वेयरिंग अ रेड शर्ट, पीटर केम विद हिज वाइफ. तो आप याद रखना इस बात को कि द प्रोनाउन ही विल रेफर टू द नियरेस्ट नाउन. ये यहीं पे जाके टच कर लेगा, ये बहुत पीछे नहीं जाने वाला. क्लियर टू एवरीवन? He will refer to Peter, not to John. And if there is nothing in between, then it will refer to what? John. Clear to all of you? The pronoun noun reference कैसे काम Yes, करता sir. है? तो यहां पर क्या होगा, जब आप दे की बात कर रहे हो तो ये दे इसको भी रेफर कर सकता है और ये दे इसको भी रेफर कर सकता है. लॉजिकली ये दे इसको रेफर कर रहा है या इसको रेफर कर रहा है? लॉजिकली किसको रेफर करेगा वो? सी। वो सर सी सी को को रेफर करेगा करेगा. क्योंकि वहां पे रीजन दिया हुआ उसका सी का. राइट. सी में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो है वो कैप्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एनस्लेव कर रहे हैं. तो आई थिंक दे मस्ट बी द वन हु आर इन्वोकिंग होली वॉर. क्योंकि वॉर में क्या होता है? कैप्चरिंग होती है, सेलिंग होती है, फाइटिंग होती है. ये तो बेचारे धंधा कर रहे हैं यार. द यूरोपियन एंड मैग्रेबी कॉर्सर्स और प्राइवेटियर्स हैड लाइसेंस फ्रॉम देयर गवर्नमेंट्स एंड दे पेड टैक्सेस ऑन देयर कैप्चर्स. तो हो सर सकता है सो कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी? मतलब वो दोनों दो अलग लोगों की बात कर रहे हैं ना. नहीं एक नहीं, तो तरफ हो क्या रहा है ना कि हो क्या रहा है बेसिकली कि ये बता रहा है कि इकोनॉमी, दो ये होली वॉर था, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स रेगुलेट टू प्रेसिडेंस. तो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था. कैसे इंपॉर्टेंट था? इन दिस फॉर्मेट. उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स टुक प्रेसिडेंस एंड they were prized and they had license from their government and they paid taxes on their captures. तो ये लाइसेंस, ये गवर्नमेंट, ये पेइंग ऑफ टैक्सेस, कैन आई से इट इज फोकसिंग ऑन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स. ओके ओके ओके.
है ना? तो आपने सी कहा, फिर ए कहा, फिर उसने आपने ए का एग्जाम्पल दे दिया बी में, किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिटिक्स प्रेसिडेंस मिलता था, क्योंकि लाइसेंस तो गवर्नमेंट देती है ना, और टैक्सेस आप गवर्नमेंट को देते हो। तो दो आप होली वॉर इन्वोक करते थे, बट primarily economy and politics took more importance, and the example of that is given in B, or elaboration of that is given in B. Clear to everyone, people? तो आप सी करो, फिर आप ए पे जाएं, फिर आप, ये आपका सीक्वेंस सर है। सर जब हम एक सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, मतलब जब हम्म, जैसे बेस्ट और लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट, हम्म। तो दैट इज ओनली वन, राइट? मतलब सिर्फ एक ही देखो, होगा वो। जनरली क्या होता है ना कि इसमें प्रॉब्लम है, जब हम बोलते हैं कि एक ही होगा, तो इट विल आल्सो बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आई विल टेल यू, आई विल गिव एन एग्जांपल। सर लाइक इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ सेकंड क्वेश्चन। हाँ, नहीं नहीं, आई गॉट दैट, कि उसमें है ना, ये जो फंडा है ना कि एक ही होगा, ये शायद कभी ट्रू ना हो हमेशा। क्यों मालूम है? क्योंकि आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे कि हम बोलते हैं द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, तो जब वो फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो फर्स्ट मैन है, उसके साथ तीन चार लोग और भी गए थे, तो वो भी सब साथ में गए, उसके साथ में लैंड हुए। तो इन दैट केस ऑल द फोर बिकम द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द, मतलब ये कोई फंडा नहीं है कि द फर्स्ट है तो फिर एक ही बंदा होगा, हो सकता है कि तीन चार लोग एक साथ हों। भाई जैसे कि आई गॉट द फर्स्ट रैंक इन इन लेट्स से सीबीएसई एग्जाम और सीयूटी एग्जाम। तो सीयूटी एग्जाम में क्या होता है ना कि जो स्कोर आया आपका, तो यू फाउंड दैट ऑलमोस्ट देयर आर 20 पीपल हु हैव गॉट द सेम स्कोर, तो ऑल द 20 हैव द राइट टू से दैट दे आर द टॉपर्स और दे आर द फर्स्ट रैंक होल्डर्स। तो ये कहना कि वो एक ही है, ये गलत हो जाएगा, हो सकता है मल्टीपल लोग भी हों, वी डोंट नो। ओके ओके, सो मींस जैसे ये ओयो इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग स्टेट्स, तो मींस लॉन्गेस्ट मतलब और भी काफी सारी होंगी, उनमें से हो एक ही सकता है, है। हाँ हाँ, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग रहे हो, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग स्टेट्स है। ओके, ठीक है सर। टेक द फोर्थ क्वेश्चन, आई विल जस्ट पुल इट डाउन, जस्ट मोमेंट, प्लीज टेक द फोर्थ वन। CBA. सीबीए, ओके। हम दे किसको रेफर कर रहा है? हु इज दे रेफरिंग टू हियर? Consuls and merchants clout in Britain. ओके, क्या लिखा है? दे बिगैन टू एंजॉय द वार्म वेदर, फाइन गार्डन्स एंड रिच हंटिंग ग्राउंड्स, ठीक है। तो दे बिगैन टू एंजॉय, ओके, they were, तो ये दे तो पक्का किसी को रेफर कर रहा है, तो you would say as British trade with the Maghreb increased, the British naval power grew in the, and so did its councils and merchants clout in the Britain, है ना? So ठीक है, कंसल्स को रेफर कर रहा होगा, मर्चेंट्स को रेफर कर रहा होगा, और किसको रेफर करेगा, है ना? तो कैसे आएगा? सी तो ओपनिंग में आ जाएगा, एवरीवन एग्रीज विद इट दैट सी विल बी द इंट्रोड्यूसिंग आइडिया। उसके बाद में क्या होगा? बी आएगा पहले या ए आएगा, या ए आएगा पहले फिर बी आएगा? दिमाग लगाओ। देखो, एक फ्लो होता है, लॉजिकल फ्लो, पता है क्या होता है? सर जैसे सी आपने ए कहा, भी होगा। they say they began to enjoy warm weather, fine gardens and rich hunting grounds, तो पहले आप कपड़े पहनोगे, है ना? देखो, अंडरस्टैंड दिस, यू आर वेयरिंग क्लोथ्स, यू आर रेंटिंग अ प्लेस, इज दिस अ प्रायोरिटी और इज हंटिंग अ प्रायोरिटी, gardens a priority and warm weather? तो before this comes, can I say this should come? Yes, sir. एक लॉजिकल बात, देखो यार, हो सकता है कि कोई बोले नहीं सर मैं तो ऐसे जाऊंगा, बट आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल।
As British trade with the Maghreb increased and British naval power grew in the Mediterranean, so did its council's clout. Clout मतलब basically power होता है, power in Britain and abroad. They were able to rent more elaborate houses in the Maghreb, है ना, clothe themselves. तो भाई ठीक है यार, they had clout, and because of that, there was, they began to rent more elaborate houses, clothe themselves. They began to enjoy warm weather. Fine. They could always move from a thing of higher priority to thing of a lower priority. So when people have clout and power, they would, of course, ड्रेसिंग है, रहना है, खाना है, और उसके बाद में फिर क्या आता है, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, हंटिंग ग्राउंड्स पे जाना, समझा। एंड व्हाट हैपेंस, अगर ऑथर को इंट्रोड्यूस आइडिया को आगे लेके जाना है ना, तो ये इसको आगे लेके जाएगा। अगर ए के आगे जाना है ना उसको, तो ये बेसिकली बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। They began to enjoy these kind of things, sometimes to the extent that it reflected value on Britain. But before this, I would talk about that they were able to rent houses, they were clothing themselves in this, they were actually drinking French wine and with their, so, staying, wearing, khana, pina, and then you enjoy the weather and gardens and hunting grounds. So you start with C, go to B and A. Yes or no? Understood, Yes, sir. sir. वार्म वेदर है भाई, कहीं तो बैठ के वार्म वेदर का एंजॉयमेंट ले रहे हो। पहले एंजॉय कर लिया वार्म वेदर, फिर आपने कर ले लिया, ठीक है। आई मीन दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट आई वुड से लेट्स गो विद सी डी ए बिकॉज़ दैट इज मोर लॉजिकल। फिफ्थ क्वेश्चन, यहां पे है ना मल्टीपल सीक्वेंस ले सकता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन माइट टेक मल्टीपल सीक्वेंस, आई विल टेल यू व्हाई, बट प्लीज ट्राई द क्वेश्चन फर्स्ट। सर ए बी सी। ठीक है, एक तो एक सीक्वेंस हो गया, एक और सीक्वेंस बन सकता है, मैं मतलब आई थिंक इट माइट बी पॉसिबल, सो आई वांट सम पीपल टू जस्ट टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल एंड व्हाई इट इज पॉसिबल। देखो इसमें पता है क्या हो रहा है, कई बार हम क्या करते हैं मालूम है क्या, हम मतलब जैसे पैराजम्बल्स में हमेशा बोलता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि सीक्वेंस प्रेफरेबल है। जैसे आप मुझे बोलोगे ना, तो ये मेरा प्रेफरेबल सीक्वेंस है, C A B. Some people might put it, but I would say this is much more preferable than this, because of course you first talk about the people, then you say that they got big houses, they drank, they ate, and then they go into the finer things of life, which makes sense. Here also, if you look here, then there is one logic. तो एक तो पेयर बन रहा है, इसमें कौन सा पेयर बन रहा है? BC. बी एंड सी। B and C पेयर बन रहा है ना, कैसे? When women become mothers, levels of hormones, estrogen, progesterone, and prolactin increase. Estrogen increases the brain's capacity. तो ठीक है भाई, ये hormones आ गए और ये आकर के फिर अपना जलवा दिखा रहे हैं, राइट? अब मुझे ये देखना है कि यार ये ए कैसे जाएगा, ये कहां से फिट होगा। Some people say कि सर आप ए शुरू में लिखो, hormones have their biological effects by binding to receptors, molecules that sense throughout the body, and they can influence behavior through binding to receptors. ठीक है भाई, hormones क्या करते हैं, ये करते हैं। उसके बाद में आपने क्या दिया एग्जाम्पल, वुमेन का एग्जाम्पल दे दिया। कैन आई से दिस इज हाउ इट गोज? You talk about hormones, you talk about women, Yes, sir. and Broader to the narrower idea. करेक्ट, ये ऐसा होता है। हॉर्मोन्स की बारे में बात की आपने, उनका रिसेप्टर्स ऑफ द ब्रेन पे असर होता है। आपने एग्जांपल लिया वुमेन का, दैट दे हैव दिस हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एस्ट्रोजन इंक्रीजेस द ब्रेन्स कैपेसिटी, ठीक है। एक और तरीका पता लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट विद बी, दे से व्हेन वुमेन बिकम मदर्स, लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोक्लेटिन, दे इंक्रीज, एंड देन यू से कि हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं। फिर आपने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, क्या दिया, कि हार्मोन्स हैव देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन द ब्रेन, एंड देन यू से एस्ट्रोजन इंक्रीजेस द ब्रेन्स कैपेसिटी। तो बेसिकली यू टॉक अबाउट द इवेंट, देन यू से कि उसके जो हार्मोन्स आता है वो ये काम करता है और वुमेन के केस में ये काम करता है। सो हुआ क्या है ना कि ABC इज द प्रेफरेबल दिस, इन द एक्चुअल सोर्स इट इज गिवन एज BAC। ये दोनों सीक्वेंस पॉसिबल है, क्योंकि द ऑथर सेज कि when women become mothers, levels of hormones increases, hormones ये काम करते हैं और एस्ट्रोजन वुमेन के अंदर ये आके काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। बट ABC is much more preferable, है ना? Clear to all of you? So sir, मतलब फाइनल क्या बोले सर?
फाइनल तो देखो यार, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ना कि मुझे लगा एबीसी सही होगा, लेकिन जहां से सोर्स है वहां पे ये मतलब मैं सोर्स उठाया था वहां से। So when I went through the question, I thought that ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कब कभार ऐसा होता है कि यू माइट बी सेइंग कि यार ये मेरे को सीक्वेंस भी सही लग रहा है बट ऑफिशियल आंसर, तो इसलिए कई बार है ना, आपको देखोगे तो यू मे नॉट गेट द क्वेश्चन राइट इन स्पाइट ऑफ हैविंग गट फीलिंग कि मेरा तो सही है। ये हो सकता है, आउटसाइड चांस है, ठीक है। यू माइट हैव टू पॉसिबल सीक्वेंसेस एंड बोथ कुड बी इक्वली करेक्ट। इन सच केसेस यू कुड बी जस्ट अनलकी और कुछ नहीं है। 6th क्वेश्चन ट्राई करो एवरीवन। अब मुझे आंसर चाहिए फटाफट। Now you know how to create the sequence. Please give me the answer. ACB. ACB, okay. Anything else? No sir, BAC. Okay, BAC आ गया। ठीक है, बताओ। सर कैसे BAC। BAC करोगे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यू मूव फ्रॉम X to Y. Not only is the human brain 3 times larger than the brain of our closest living primate relatives, the great ape, but the human prefrontal cortex is also larger than expected. So देखो राइटिंग स्टाइल क्या बोलती पता है क्या, कि ऑथर ने स्टार्ट तो यहां से किया है, फिर उसने इसकी बात की, अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या करेगा वो? विल ही टॉक अबाउट द ब्रेन और विल ही टॉक अबाउट द कॉर्टेक्स? Cortex. अगर आप राइटर हो, जैसे आपने पता है सपोज एक सेंटेंस लिखा, दो many people believe that Virat Kohli is the best batsman of the world, some cricket pundits think that Steve Smith is a better batsman, is the better batsman. तो आप पता है क्या बोलोगे कि अभी मुझे लगता है कि ऑथर जो है ना उसने एम्फेसाइज किया है स्टीव स्मिथ के ऊपर, तो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर वो स्टीव स्मिथ की बात करेगा। Yes sir. ऐसी लग रहा है ना, बिकॉज जो एम्फेसाइज किया गया है वो सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस में एम्फेसाइज किया गया है। तो आपने क्या कहा मेरे से कि नॉट ओनली इज द ह्यूमन ब्रेन 3 times लार्जर देन द ब्रेन ऑफ आवर क्लोजेस्ट लिविंग प्राइमेट, बट द ह्यूमन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज आल्सो लार्जर। इसका मतलब ये है कि by putting this in the later half of the sentence, you are trying to emphasize on this idea, है ना। और उसके बाद में आपने क्या कहा, our prefrontal cortex is what allows us to override ancient evolved impulses in the service of honoring commitments, abiding by social forms, and exercising moral responsibilities. We are privileged to have this remarkable organ, and we fathers should do well to make use of it. तो आप बोलोगे सर वो तो समझ में आएगा कि बी ओपनिंग होगा, तो उसके बाद में हम ए पे जाएंगे फिर सी पे आएंगे, बी से सी पे जाएंगे फिर ए पे आएंगे, क्या ना, ऐसे ये बोन ऑफ कंटेंशन है? यस और नो? सबको लग यस रहा सर। है कि इसमें थोड़ा अपने को बताओ कैसे करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक तो होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, यू ट्राई टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड। तो इसमें आपको एंडिंग ये अच्छी लग रही है ज्यादा, ये अच्छी लग रही है? देखो आई विल टेल यू व्हाई। अगर हम हाँ C को डायरेक्टली B के बाद रखेंगे तो ये नहीं प्रूव हो रहा कि हम प्रिविलेज्ड क्यों है उसे यूज करने के लिए, और ये उसे प्रूव कर रहा है। हाँ अब देखो, हाँ राइट, ये उसको प्रूव कर रहा है। अभी आई विल टेल यू वन मोर थिंग एक्चुअली। अब आपने क्या कहा मालूम है क्या, कि नॉट ओनली दिस ह्यूमन ब्रेन, वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव दिस रिमार्केबल ऑर्गन। ये रिमार्केबल कैसे हो गया यार? मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये लार्जर है, इसे रिमार्केबल हो गया। ये रिमार्केबल क्यों हो गया अचानक से? ये रिमार्केबल इसलिए हो गया है क्योंकि इट अलाउज अस टू ओवरराइड एंशिएंट इवॉल्व्ड इंपल्सेस। तो जो हमारे एंशिएंट इंपल्सेस थे ना पुराने, मार के खाने के, चीर के फाड़ के फेंक देने का, वो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको ओवरराइड करता है। और किसको किसको देता है प्रायोरिटी? ऑनरिंग कमिटमेंट्स, अबाइडिंग बाय सोशल नॉर्म्स, एक्सरसाइजिंग मॉरल। ये कौन करेगा? आपके पापा ही करेंगे ना। दैट्स व्हाई वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव दिस रिमार्केबल। ये रिमार्केबल इसलिए है क्योंकि ये हमको अलाउ करता है, इसलिए रिमार्केबल है। आपने बी लिखा
बड़ा है साइज में, इसलिए रिमार्केबल हो गया, और फिर आप रिमार्केबल का पॉइंट आ गए। आई थिंक BAC इज अ बेटर सीक्वेंस, यस और नो? एवरीवन एग्री? Yes, sir. देखो इसका कोई लॉजिक नहीं कि मैं प्रूव कर दूं, लेकिन मुझे पता है क्या लगता है कि ये जो है ना, वी फादर्स वुड डू वेल टू मेक यूज ऑफ इट। अरे यार, अ, आप फंक्शन बताओ, and then you'd say that we would be happy to get you. I mean, this is how it should be, you know. You introduce the idea, you describe what that idea means, and then you say that we were privileged to have this all. समझ में आया कि नहीं? I hope everyone says BAC is the right answer. Yes, sir. Correct? Understood. हाँ जी. Yes, sir. बहुत सारी चीजें हैं ना, आपको पढ़ने से भी समझ में आएंगी, इसलिए ना रीडिंग भी करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं कोर्स के अंदर। ठीक है, चलो एनीवेज, ये बताओ ये क्या होगा? सर ये भी आप कुछ मैनेजेबल। मिनिमम टाइम दे दिया करेंगे, 30 सेकंड्स के बाद ही कोई बोले लाइक हाँ हाँ, कोई बोलेगा नहीं भाई जल्दी, जब देखो मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। 7th क्वेश्चन। सर इससे बढ़िया चैट बॉक्स में ना लिख दे आपको सब पर्सनल पे। हाँ नहीं, कोई बोलने की जरूरत नहीं ना, डोंट डोंट राइट द आंसर, है ना, मैं वो डिसेबल कर दूंगा वो। जस्ट कीप योर आंसर्स टू योरसेल्फ एंड देन आई विल गिव द आंसर, ठीक है? परफेक्ट सर. हाँ। डन सर। हो गया? क्या लग रहा है सीक्वेंस क्या होगा भाई? CAB। हाँ, CAB. CAB। डी कहाँ है? CAB। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बट को बैलेंस करना पड़ेगा ना? यस सर। बट तो ऐसे ही नहीं आ जाता, तो अगर मैं को एक और चीज लिखनी है यहाँ पर, तो मैं एक और चीज लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है? आई हैव बीन राइटिंग दिस। कीप्स, प्रोनाउंस को यूज करो, कीप सिमिलर आइडियाज टुगेदर। तीसरा है यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है? तो आई विल जस्ट, एक मिनट यार, क्या यूज एक मिनट, कंट्रोल C, यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू कनेक्ट आइडियाज, ठीक है? और सेंटेंसेस लिखूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर ये क्या वर्ड आपने यूज कर लिया? तो आई विल जस्ट टेक अ व्हाइल, आई विल पुट अ वर्किंग कॉलम हियर एंड आई विल शो यू कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में क्या फर्क होता है। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, बिकॉज आई एम रिच, बिकॉज आई एम रिच कॉमा आई एम हैप्पी, ठीक है? ये कंजंक्शन है ना? यस और नो? एवरीवन एग्रीज कि ये कंजंक्शन है। आई एम सॉरी, आई एम रिच बट आई एम अनहैप्पी, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है जो अलग अलग उसमें आए हैं, और ये बेसिकली एक ही सेंटेंस के अंदर चीजों को जोड़ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? सर कंजक्शन स्टार्टिंग में भी लग सकता है. हाँ लग सकता है, इट कैन कम एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, पॉसिबल है, जो टीचर ने बताया ना स्कूल में, नहीं है वो, होता है, पॉसिबल है। आई एम रिच फुल स्टॉप बट आई एम अनहैप्पी, जैसे यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे, सो इफ यू लुक एट दिस, देन दिस इज अ कंजंक्शन which has come at the start of a sentence. तो ये किससे बैलेंस हो रहा है? ये किसको बट कर, ये किसको कंट्रास्ट कर रहा है? कंट्रास्ट व्हाट? किसको कर रहा है कंट्रास्ट? सब बी को कर रहा है। बट टू नेल्सन अ rheumatologist, दिस एक्सप्लेनेशन, ये कहां पर दिख रहा है आपको? ये कहां पर है?
ये बी में है या सी में है? सर बी में। इसमें है ना? सर वो एग्जामिशन को वो कर रहा ये एक्सप्लेनेशन तो यही है ना. When Lee Nelson first began researching autoimmune disorders in the 1980s, the prevailing assumption was that conditions such as arthritis and lupus tend to show up more commonly. ये है ना, but because they are linked to female sex hormones. Can I say ये explanation की बात हो रही है? This is the Yes, sir. explanation. आप बोलोगे सर नहीं बी में तो है ही नहीं एक्सप्लेनेशन. बी में तो बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन है. If hormones were the culprit, one would expect these afflictions to peak during women's prime reproductive years, when instead they, ये जो है, अगर ऐसा होता तब तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है. ये तो फैक्ट है ना. ये एक्सप्लेनेशन है. एवरीवन अग्रीज और नॉट? इसका मतलब ये दिस एक्सप्लेनेशन जो है इसको रेफर कर रहा है, यानी कि सीए पेयर होगा. When Lee Nelson began to research something, the prevailing assumption was that conditions such as these tend to show up more commonly in women because of this reason. लेकिन नेल्सन को ये एक्सप्लेनेशन सेंस नहीं बना. क्यों नहीं सेंस बना? क्योंकि इफ हॉर्मोन्स वर द कल्प्रेट तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो रहा था. एवरीवन अग्रीज? दिमाग की बत्ती जल रही है ना? यस सर। देखो, रीडिंग इंटेलिजेंटली करो. ये जो बच्चे नहीं होते स्कूल स्कूल के रट के आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं. अब आपको ये समझ में आएगा कि भाई ली नेल्सन ने कुछ किया. शुरू में एक अजम्पशन था, वो अजम्पशन के पीछे ये एक्सप्लेनेशन था, लेकिन नेल्सन को ये मतलब ये 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 उसको सेंस नहीं बन रहा था उसका. क्यों नहीं बन रहा था? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्राडिक्शन. ये बेसिकली एक कॉन्ट्राडिक्शन है. सो ये इट डिड नॉट मेक सेंस बिकॉज ऑफ दिस रीजन. एंड व्हाट इज दिस एक्सप्लेनेशन? दिस इज द एक्सप्लेनेशन. आगे बढ़ूं मैं फटाफट, है ना? चलो, take both the questions 8th and 9th. डन सर। बाकियों का हो गया? Done, sir. Okay, great. Okay. 8th is very easy. What is the sequence? Sequence क्या होगा 8th का?
The BAC. You will start with B, no doubt about it. Because before you talk about the incident, देखो जब आप लिखते हो द वाटर, तो ये कहीं स्पेसिफिक प्लेस पे है, यस और नो? स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है ना. The water at that particular place, the water appeared clear and clean to the naked eye while the London air reeked of sewage. So you won't start your discussion with C. B says there was a time when doctors in the West attributed the great epidemics such as plague and cholera to an unhealthy fog, a noxious gas rising up from putrid waste-choked alleys of London or the marshes of outside of Rome. So there was a time when doctors in the West, so this West could be anywhere. It could be Rome, it could be London, it could be Berlin, it could be anywhere, right? So here the focus is not London, here the focus is the West. And the example have come, I mean, the places that the author has given randomly is either London or Mars. कहीं भी हो सकता है वो, Rome. During the cholera outbreak of 1854, now he comes to London example. During the cholera outbreak of 1854 in London, which killed more than 600 people, the physician John Snow traced the disease to a water pump that he believed to be contaminated by a nearby cesspit. But his theory was largely rejected. Why was the theory rejected? The theory was rejected because too many people, the water appeared clear and clean to the naked eye. So ये जो है ना, ये his theory was rejected because of this reason. Can I say this A should give way to C and B will come at the start? तो BAC बन जाएगा ना answer. Everyone agrees? Yes, sir. So this water, Yes, sir. this water is having a reference. It is the water which basically Jon Snow came across as contaminated in the cesspit. But because to others it appeared clear, so it was, the theory was rejected. So whenever you put the article the, देखो article the plus common noun, ये बहुत dangerous combination है. Article the plus common noun needs reference. It needs reference, or else it will take. देखो मैं जब ग्रामर पढ़ाता हूं ना बीच बीच में, तो ग्रामर के भी फंडे देते चले जाऊंगा आपको. और else it will take implied reference. एग्जाम्पल दूं आपको मैं, ठीक है? एग्जाम्पल देता हूं आपको. द प्रिंसिपल हैज कम. एक ही प्रिंसिपल है क्या पूरी दुनिया में? आप स्कूल में हैं और द प्रिंसिपल हैज कम, तो कौन सा प्रिंसिपल होगा? ऑफ कोर्स आपके स्कूल का होगा, है कि मेरे नहीं? स्कूल का. कैन आई से इम्प्लाइड रेफरेंस है? टीचर ने बोला नहीं कि कौन सा प्रिंसिपल है. द प्रिंसिपल का मतलब है आपके स्कूल की बात हो रही है और कहीं की बात नहीं हो रही है. ये समझने वाली बात है ना? क्लियर टू एवरीवन? जी. लेकिन कई बार क्या होता है ना कि रेफरेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज आप उस जगह पे नहीं. जैसे ये द वाटर है, जैसे आप मेरे घर पे आए, मैं आपको एक गिलास पानी दिया, आप मेरे घर पे आए, आपको मैंने एक गिलास पानी दिया, पानी से बदबू आ रही थी, तो आपने कहा द वाटर इज स्मेलिंग. द वाटर कौन सा वाटर है? जो मैंने आपको आपके हाथ में दिया, उसी वाटर की बात कर रहे हैं ना. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द वाटर क्या है जो आपके सामने रखा हुआ है घर पे, वो तो वाटर की बात नहीं हो रही है, ये किसी स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है. तो इसको मैं रेफरेंस ढूंढूंगा इसके लिए. If there is no implied reference, then I will try to find a reference. In parajumbles, when you have the plus common noun, it is referring to something, you need to find the reference. Clear to all of you? आगे बढ़ो. 9th क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है वैसे? इजी है ना? BCA होगा, करेक्ट. BCA होगा. BCA. सर These BAC ripples होना जो है चाहिए ना, सर. नहीं एक्चुअली क्या these ripples की पहले बात होगी ना. पर सर दियर जो है वो तो साइंटिस्ट को रेफर कर रहा है ना, टीम ऑफ साइंटिस्ट. Their discovery was because यहाँ पे तो नाउन नहीं आ रहा है. इनफैक्ट इट विल गो टू, जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं,
One afternoon in February 2016, I watched in rapt attention as a team of scientists unveiled the first definitive evidence for the existence of gravitational waves, ripples in space and time produced by a pair of massive black holes crashing together 1.3 billion light years away. These ripples had been predicted. ये ripples की बात हो रही है, sorry. ये ripples की बात हो रही है. Ripples discover हो रहा है ना. डिस्कवरी रिपल्स की हो रही है, साइंटिस्ट की नहीं हो रही है. समझ में आया? मतलब रिपल्स इज Yes, इक्वल sir. टू ग्रेविटेशनल वेव्स इज इक्वल टू रिपल्स, दोनों एक ही चीज है. तो आपने क्या कहा? वन आफ्टरनून इन फेब 2016 आई वॉच्ड इन रैप्ट अटेंशन as a team of scientists unveiled the first definitive evidence of gravitational waves, ripples in space produced by pair of massive black holes. These ripples had been predicted 100 years ago by Einstein. Their discovery was a feat of, ठीक है भाई, ripples discover हुए, ये उनका प्रेडिक्शन हुआ था, एंड इट इज अ बिग अचीवमेंट. सो यू गो फ्रॉम बी टू सी टू ए. ये देयर जो है ये रिपल्स की बात है. रिपल्स इज इक्वल टू व्हाट? ग्रेविटेशन. तो एक ही चीज है दोनों. क्लियर टू एवरीवन? बीसीए होगा. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. अच्छा क्वेश्चन है ये, 10th वाला. प्लीज ट्राई दिस. BCA. BCA, ओके. It can also be BAC. ओके. ओके, लेट्स सी. मुझे ये बताओ कि ये पुट अनदर वे क्या है? ये B को ये दूसरी तरीके से बता रहे हैं. Another definition, type of definition. बट फिर ये कैसे, इसका क्या करोगे आप? So B is the definition of cosmic horizon. तो ये तो डेफिनेशन है ना कॉस्मिक होराइजन का. बिकॉज ये तो डेफिनेशन नहीं होगा, क्योंकि तो आप अनदर वे में, तो इसका अंदर बी से शुरू होगा. if every time we look out into the cosmos, we are looking into the past, right? It stands to reason that looking far enough away could mean looking at the time so far into the past. It is the moment when the universe first formed. This is what defines our cosmic horizon. अब ये cosmic horizon जो है, ये टर्म तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना आपको. Yes. See, if you put B and then you put A, तो मुझे ये इसका मतलब क्या मेरे को पता नहीं ना. यहाँ पे आपने कहीं भी कॉस्मिक होराइजन यूज नहीं किया है. यहाँ पे कहीं भी आपने कॉस्मिक होराइजन यूज नहीं किया. यहाँ पे आपने बोला पुट अनदर वे एनीथिंग बियॉन्ड. सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू पुट B एज अ पेयर, आई एम कंफ्यूज्ड बिकॉज इन B you say that you look back into the cosmos, we are in the past, the universe formed, put another way anything beyond. तो मैं बोलूंगा यार ये इसका मतलब क्या है? But when you put this in between, that means whatever you said in B, that is what you mean by cosmic horizon. And put another way, yes or no? Yes, sir. है ना भाई. आपने बताया मुझे कि इफ जैसे आप डिस्टेंस में देखते हो तो आपको क्या दिखता है? पेड़ दिखते हैं, ये दिखते हैं, फिर आपको स्काई लग रहा है कि टच कर रहा है अर्थ को. सिमिलरली इफ एवरी टाइम वी लुक इनटू द कॉस्मोस, वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट. ठीक है. इट स्टैंड्स टू रीजन दैट लुकिंग फार इनफ अवे कुड मीन लुकिंग एट द टाइम so far into the past. It is the moment when the universe first formed. तो इसका मतलब ये है कि आप वहां तक देख लोगे जहां पर यूनिवर्स पहले बना था. ये है कॉस्मिक होराइजन. And then you define both B and C combined in another way. Clear, everyone?
Yes or no? यस सर। Yes, sir. समझ में आ यस रहा है? सर। अब देखो हमने दो का पेयर बनाया, दो सेंटेंसेस के हमने वो किए। अब क्या हो रहा है ना कि जब हम हमने इसके पहले वाले क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर ली है, तो हमने क्या किया था कि हमने दो सेंटेंस को पहले पकड़ा और हमको अच्छा लगा कि भैया 2 सेंटेंस पकड़ने पे आई एम गेटिंग अ गुड ग्रिप। नाउ आई हैव टेकन 3 सेंटेंसेस। अब जब चौथा फिट होगा ना तो बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी आप लोग, यू वोंट फाइंड वेरी स्ट्रेंज कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है? So now what I will do in the next class, I would go to 4 sentences then. Clear to everyone, people? Yes, sir. So let's when will finish. be the next class? Any idea? Sunday होगा, Sunday शाम को। Okay sir. अभी ओके आपके सर। 12th के एग्जाम कब से आ रहे हैं? Would you be 24th Feb। तो इसका मतलब we can take classes till 20th of Feb, right? यस। 20th के बाद ब्रेक दे दूंगा मैं आप लोगों को, then again from the end of March we can commence once the exams are over. क्योंकि किसी के एग्जाम होंगे किसी के नहीं होंगे, फिर आई डोंट वांट पीपल टू अननेसेसरीली सफर। तो 1 महीने का आप ब्रेक ले लेना, रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल रहेंगी, उसके बाद में अपन फिर वन शॉट में। एग्जाम का डेट क्या है वैसे? और कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं, 24th Feb। ये सॉरी आईपी मैट तो सी इसके एग्जाम्स सर वो थोड़ी आई है अभी। अभी तक आया आए नहीं हैं? अभी तक। चलो ठीक वो तो ठीक बहुत है। बाद में आएगा। हाँ, मई के एंड में ही होगा। मई में। ठीक है, हाँ वी हैव इनफ सर टाइम। आई थिंक फ्रॉम 21st May। हाँ, सो वी हैव द होल ऑफ अप्रैल, द होल ऑफ मई, प्रैक्टिकली वी हैव द होल ऑफ अप्रैल, द होल ऑफ मई। तो रगड़ के बाकी सिलेबस का कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा ना, आप लोगों को ग्रामर कराऊंगा, तो ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यस। तो मैं क्या करूंगा ना, जो सेंटेंस करेक्शन होता है जीमैट का, वो पकड़ूंगा आप लोगों को ले, बहुत मजा आएगा फिर। तो दैट विल एंश्योर। देखो आपने क्या करना है ना कि आरसी पे डिपेंडेंसी कम रखनी है। आरसी बहुत हाईली अनप्रेडिक्टेबल है इन लोगों का। आरसी में देखा हूं बहुत घटिया आता है या कभी कभार बहुत इजी आ जाता है। सो व्हाट यू शुड डू आइडियली इज ट्राई टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर एंड इन द प्रोसेस गेट ऑल द इजी क्वेश्चंस करेक्ट। अगर ये हो जाएगा तो पेपर निकल जाएगा फिर। ग्रामर तो चिपका दूंगा अच्छे से एकदम, क्योंकि वो जो सेंटेंस अंडरलाइनिंग करते हैं ना ये लोग, ये टिपिकल सैट में आता है, एसएटी वाला। एंड एसएटी आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट्स, तो वो का उसका ग्रामर कराऊंगा तो आपका ग्रामर निकल जाएगा। ठीक है? सर अब अभी के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करें? अभी के लिए तुम क्या करो कि अभी तो मैंने पैराजंबल्स के 2 या 3 का, तो पैराजंबल्स की जो फोल्डर है ना आपकी जो कोर्स है, उसके अंदर एक पैराजंबल्स फोल्डर है। तो उसमें जो पैराजंबल्स हैं उसमें करीबन 150 क्वेश्चन है, तो वहां से आप प्रैक्टिस करो। ओके। ठीक है? सर आपके भेटिले के अलावा कोई और बुक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? ना ना ना, कोई जरूरत नहीं। पैराजंबल्स तो मैंने जो पढ़ाया है कोई ऐसा नहीं पढ़ाया, आप और कुछ छुओ मत। ओके सर। पैराजंबल्स पकड़ते हैं, फिर मैं फिटिंग सेंटेंस ले लूंगा आपका, तो वो 2 पार्ट पे जंबलिंग वाला क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको ग्रामर कराऊंगा, और फिर मैं सर। कराऊंगा idioms, phrases and confusing words जो आते हैं आपको एग्जाम में, राइट? यस सर। तो मैं सर जब ये, मार्च में भी ले सकते हैं क्योंकि 2 पेपर हाँ के बीच में 6 से 7 दिन का गैप है। ठीक है, हाँ तो जी आप सर मुझे, ले लो सर। यू कैन टेक अ कंसेंसस अमॉन्ग्स्ट योरसेल्फ, ताकि मैं खूब सारा वोकैबुलरी कराऊं आपको। हाँ जी सर, ओके 1-1.5 सर। घंटे की क्लास में क्या ही इतना हो जाएगा। यस ठीक सर। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। चलो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन सम टाइम। ठीक? ओके कोई सर। ऐसे पास्ट रिकॉर्डिंग्स है जिससे मतलब अपने पेस पर भी थोड़ा कर सकें? हाँ हाँ, अभी तो क्या करो ना, प्रैक्टिस शुरू कर दो पैराजंबल्स की, एंड देन आई विल ट्राई टू गो। मुझे ना पेपर भी शेयर कर लो आप ग्रुप पे। जो पास्ट ईयर के पेपर्स जितने अवेलेबल हैं सब शेयर कर लो जरा। हालांकि मैंने सॉल्व किए हैं, बट आई हैव लॉस्ट सम ऑफ द पेपर्स। सो इफ यू कैन गिव मी ऑल द पेपर्स ऑफ आईपी मैट ऑफ द ओके पास्ट सर। जितने भी साल है, सब दे दो मेरे को। ताकि मैं क्या करूंगा ना कि अपनी जो कंटेंट है अपनी क्लास की, उस तरह से मॉडिफाई करके आप लोगों को दूंगा। ठीक है? ओके सर। चलो बाय, सर आपके में वो तो पैरा व्हाट्स योर कंप्लीशन के नेम? वो कहाँ से मिलेंगे पीडीएफ? कौन सी पीडीएफ? जो मैंने भी क्लास में ली है। नहीं सर, पैरा कंप्लीशन की जो आप कह रहे हैं कि आपकी साइट पे है, मतलब वो पोर्टल पे। पोर्टल पे है, उस पे तो पीडीएफ मैं रिलीज नहीं किया हूँ, लेकिन क्वेश्चन मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन दिया हुआ, उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ, तो आपको उस पर ऐप पे एक्सेस मिलेगा। ऐप पे मतलब कि जो पोर्टल में आप लोगों को लॉगिन किया है ना आप लोगों ने, गॉट इट सर। हाँ, तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है?